Hello, friends. Very good morning. I am Nitin Tyagi from Electrical and Electronics Department. Today we are going to discuss on lecture first of electrical machine, basic construction of DC machines. Today we will see the part of construction only. So we can start now. This is one diagram which we are seeing here. That you are seeing in this diagram the basic construction part of DC machines. Basically two parts are rotor and stator. This is stator and this is the rotor. Okay, now there are construction parts are yoke. These are the pole core. It is pole shoe. It is armature core. It is armature conductor. This is commutator and this is brushes. Okay, we start now in details. Then first part is yoke. Okay, so this is the diagram of yoke. We can say that the yoke is the frame of machine. Yoke is the frame of machine, and I think that it is the covering part of machine, and it protects from the moisture, dust, in the environmental protection. The yoke is the made for environmental protection. We can say dust can be go in inside of the machine, and it can affect the performance of the machine. So the yoke is the covering. We can say it is covering, and it also provides the mechanical strength to the motor, and the most important function is that it also provides the low reluctance path for the magnetic flux. We can say that a low reluctance flux means the opposed to the flow of flux is the reduced. Means it is low reluctance path, na? And it is very necessary for the power should not be wasted. यदि अपना पावर वेस्ट नहीं होगा तो ये कंडीशन कब आएगी, जब अपने को लो रिलेक्टेंस पाथ मिलेगा. और लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड करने के लिए भी दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ योग. तो हियर वी आर सीइंग दिस द पार्ट ऑफ योग्स. Also we are seeing here terminal box, and this is the terminal box. This is left eye, this is frame, these are the feet. This is the total covering of DC machine. Okay, now our next part is pole core and pole shoes. uh, these pole cores and pole shoes are connected with the yoke, है ना? The yoke, it is jointed with the yoke, and the below part is above the armature core. You can also see the diagram of this diagram. We can understand quickly that here is the yoke, and this is the pole core, and this is pole shoe. Okay, this is pole core and this is pole shoe. Okay, so now we are discussing about the pole core and pole shoe. Okay, so first we can see the yoke. Yoke is the material is used for the yoke. It is for the small DC machine the cast iron, and for the large DC machine used cast steel or silicon steel. Okay, तो स्मॉल जो डीसी मशीन होती है उसमें कास्ट आयरन की योक बनाते हैं. जो मेटल यूज होती है उसका नाम है कास्ट आयरन. और इसमें हम कास्ट आयरन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन होता है, मतलब वो डिपेंड करता है कि चीपेस्ट मटेरियल हम यूज करें. क्योंकि स्मॉल डीसी मशीन में ज़्यादातर जो योक है उसमें हम चीप मटेरियल यूज करना चाहते हैं, तो कास्ट आयरन इज द मोस्ट प्रेफरेबल इन स्मॉल डीसी मशीन. और लार्ज डीसी मशीन में जो हम मटेरियल यूज करते हैं योक के लिए वो होता है कास्ट स्टील या सिलिकॉन स्टील. इसका एक एडवांटेज ये है कि इसकी परमेबिलिटी बहुत हाई होती है कंपेरेटिवली टू कास्ट आयरन. ठीक है, और हमारा जो मेन फोकस रहता है लार्ज डीसी मशीन में योक बनाने के लिए,
वो वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वेट मतलब वेट ज़्यादा ना हो, वेट कम हो, तो उस के लिए भी हम कास्ट स्टील और सिलिकॉन स्टील यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं डीसी मशीन, उसमें योक को 2 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब 2 हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और जहाँ पे भी हमको डीसी मशीन इंस्टॉल करनी होती है वहाँ पर जाकर हम उस हाफ पार्ट्स को बोल्टेड कर लेते हैं या जोड़ लेते हैं, ज्वाइंट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमको ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत नहीं होती है। तो अगला जो पार्ट है हमारा वो है पोल कोर और पोल शूज। तो पोल कोर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जनरली जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं वो या तो 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, इस तरीके से नंबर ऑफ पोल्स होते हैं डीसी मशीन में। तो पोल कोर का काम क्या होता है? ये जो पोल कोर अपन ने देखा था, ये योक के नीचे, योक से जॉइंटेड रहते हैं, योक से मतलब योक से कनेक्टेड रहते हैं, और इनका काम क्या होता है ये हम देखेंगे। ये जो आप देख रहे हो पोल कोर, ये ऊपर वाला पार्ट ये पोल कोर है, और ये जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हो जो बाहर निकला हुआ है, इसको पोल शू बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जनरली पोल कोर का काम होता है कि ये इट इज यूज्ड टू कैरी फील्ड वाइंडिंग, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड है, तो फील्ड वाइंडिंग को हम कोर के ऊपर उसको ले जाते हैं, कोर के ऊपर कनेक्ट करते हुए फिर दूसरे पोल कोर पे, फिर ऐसे सारे पोल कोर पे फील्ड वाइंडिंग को कैरी कर पाते हैं। तो पोल कोर का एक काम तो ये हो गया टू कैरी फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग जब ये कैरी करेगा तो फिर क्या होगा, वहाँ पे करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा तो ये मैग्नेटाइज करेगा। मैग्नेटाइज किस को करेगा? पोल कोर को मैग्नेटाइज करेगा, पोल शू को मैग्नेटाइज करेगा। और पोल शू जो है वो एक्ट एज अ सपोर्ट to the field coil for the uniformly flux distribution. This is the main work of pole shoe. Here we are seeing this is pole shoe, and the main work of pole shoe is uniformly distribution of main flux. ठीक है, तो इस मेन फ्लक्स जो है मतलब यूनिफॉर्मली प्रोड्यूस करने के लिए भी पोल शू का इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें हमको ध्यान रखना है, पोल शू और पोल कोर, ये देख रहे हैं हम, पोल शू और पोल कोर दोनों लेमिनेटेड होते हैं। तो लेमिनेटेड होना चाहिए, ऑलवेज इट शुड बी लेमिनेटेड। यदि लेमिनेटेड नहीं होंगे तो क्या होगा? लेमिनेटेड नहीं होंगे तो क्योंकि इसके ऊपर से फील्ड वाइंडिंग जा रही है, तो ये हीटेड होगा, और ये पार्ट इतना हीटेड हो सकता है कि हमारी डीसी मशीन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मतलब डीसी मशीन पे मतलब लॉसेस हो सकते हैं, हीटिंग लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे यदि हम इसको लेमिनेटेड नहीं करेंगे। तो इसलिए हम इसको लेमिनेटेड करते हैं। और दूसरा ये रहता है कि एडी करंट लॉस भी इससे रिड्यूस होते हैं। तो ये रीज़न है पोल कोर और पोल शू को लेमिनेटेड करने का। अब दूसरी बात ये होती है कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए। तो पोल कोर में जो स्मॉल डीसी मशीन है उसके जो पोल कोर बनते हैं उसमें कास्ट आयरन मटेरियल यूज़ करते हैं, और जो लार्ज डीसी मशीन है उसके जो पोल कोर बनते हैं उसमें हम कास्ट स्टील यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने योक में भी देखा था। तो पोल शू और पोल कोर के लिए हम लोग ये मटेरियल यूज़ करते हैं। तो इसका फंक्शन हमको समझ में आ गया। एक तो ये फ्लक्स यूनिफॉर्मली प्रोड्यूस करना चाह रहा है किसके ऊपर? आर्मेचर कोर के ऊपर। जो आर्मेचर कोर और योक के बीच में जो एयर गैप है, उस एयर गैप में जो फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं वो यूनिफॉर्मली प्रोड्यूस करने के लिए ये पोल शू और पोल कोर का यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बाद आता है, ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम में आप देखिए, ये फील्ड, ये आपका पोल है, पोल शू दिख रहे हैं अपने को, और यहाँ पे ये फील्ड वाइंडिंग ऊपर लपेटी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बीच में आएगा आर्मेचर कोर, जो कि हम इसके बाद अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग, ये देखिए आप, फील्ड वाइंडिंग पोल कोर के ऊपर यहाँ से ये कैरी कर रहा है, पोल कोर यहाँ भी कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, और ये इसमें हम फील्ड वाइंडिंग दे रहे हैं। ये डीसी सप्लाई इसमें आती है, और जो कि पोल कोर से कनेक्टेड है, जितने भी पोल है उस पर ये फील्ड वाइंडिंग लपेटी हुई है। ठीक है, अब फील्ड वाइंडिंग का काम क्या होता है?
तो फील्ड वाइंडिंग